السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ کے چنے ہوئے بندوں، سنو، جو سندیش آج تم سننے والے ہو وہ کوئی سادھارن سندیش نہیں ہے۔ یہ آسمانوں کے اوپر لکھے گا ایک الہی فرمان کا حصہ ہے، ایک ایسا پیغام جو سیدھے تمہارے دلوں تک پہنچ رہا ہے۔ اگر تم آج یہاں ہو تو یہ کوئی سنیوگ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا خاص فیصلہ ہے۔ اس نے تمہیں خود بلایا ہے، تمہیں چنا ہے۔ تم نہ صرف کچھ سن رہے ہو بلکہ ایک ایسے پل میں قدم رکھ رہے ہو جو تمہاری تقدیر کو ہمیشہ کے لیے بدل سکتا ہے۔ اللہ کے فیصلوں میں کبھی کوئی بے ترتیبی نہیں ہوتی۔ ہر تاکید ایک رحمت کا دروازہ ہے، ہر نصیحت ایک خلاصہ ہے، ہر ہدایت ایک واپسی کی پکار ہے۔ اللہ تمہیں شرمسار کرنے نہیں آئے ہیں، وہ تمہیں بچانے آئے ہیں۔ وہ تمہیں تباہی سے پہلے بچانا چاہتے ہیں، وہ تمہیں ختم ہونے سے پہلے جگانا چاہتے ہیں۔ وہ تم سے بہت پیار کرتے ہیں، اتنا کہ وہ تمہیں اس راہ پر نہیں چھوڑ سکتے جہاں تم کھڑے ہو۔ یہ ایک دل کی آواز ہے جو تمہارا مستقبل دیکھ رہی ہے اور اس کے لیے لگ رہی ہے۔ وہ آگے کی خطروں کو دیکھتے ہیں، وہ نتیجوں کو دیکھتے ہیں، وہ شیطان کے جال کو دیکھتے ہیں جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے، اور اپنی بے پناہ رحمت میں وہ یہ پیغام بھیجتے ہیں، تمہیں ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ تمہیں جنت کی راہ دکھانے کے لیے۔ اب اس پیغام کی گہرائی میں جانے سے پہلے میں ایک کھشن کے لیے رکنا چاہتا ہوں۔ میں ان سبھی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اس مشن کو اپنی دعاؤں اور محبت سے طاقت دی، خاص کر ان بھائیوں اور بہنوں کا جنہوں نے سپر تھینکس بٹن کے ذریعے ہمارا ساتھ دیا۔ تمہارا یہ جذبہ صرف قابل تعریف نہیں ہے بلکہ اس مشن کی ریڑھ ہے۔ تم صرف مددگار نہیں ہو بلکہ اللہ کے اس بلاوے میں میرے شریک ہو۔ دل سے شکریہ۔ اگر یہ پیغام تمہارے دل میں آگ جگا رہا ہے، تمہاری روح میں چنگاری بھڑکا رہا ہے، ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اب کر لو، تاکہ ایسا کوئی پیغام نہ مس ہو جائے جو تمہاری روح کو بلند کرے اور راہ دکھائے۔ چلو اب اس پیغام کو دل سے دل تک لے جائیں۔ یہ صرف ایک نصیحت نہیں ہے، یہ ایک ایسا تجربہ ہے جو تمہاری زندگی کو ہلا دے گا۔ تیار ہو جاؤ، چلو شروع کرتے ہیں۔ جب اللہ فرماتے ہیں مجھ سے آزمائش مت کرو، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ان سے سوال نہ کرو یا ان کے فیصلوں کو سمجھنے کی کوشش نہ کرو۔ نہیں میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ کو آزمانا مطلب ہے ان کے ساتھ لاپرواہی برتنا، جان بوجھ کر نافرمانی کرنا، ان کے حکم کو ٹھکرانا اور پھر بھی یہ امید رکھنا کہ وہ اپنی رحمت اور برکت برسائیں گے۔ یہ ایسے ہے جیسے کوئی محبت کرنے والا والد اپنے بچے سے کہتا ہے آگ کو مت چھونا، تم جل جاؤ گے، مگر بچہ وہ حکم ماننے کی بجائے بار بار اپنی انگلیاں آگ کے قریب لے جاتا ہے، نادانی سے نہیں بلکہ یہ دیکھنے کے لیے کہ والد کب تک خاموش رہیں گے۔ اللہ کو آزمانا ٹھیک یہی ہے۔ یہ کوئی معصوم سوال نہیں ہے، یہ جان بوجھ کر کی ہوئی بغاوت ہے۔ یہ تب ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے جو تم بو گے وہی کاٹو گے۔ آؤ اس بات کو اور گہرائی سے سمجھیں۔ جیسے کوئی موتی سمندر کی تہہ سے نکالتا ہے، اللہ کو آزمانا باہر سے شروع نہیں ہوتا، یہ دل کی گہرائی سے اٹھتا ہے۔ یہ تب شروع ہوتا ہے جب ہم اس جھوٹ کو سچ مان لیتے ہیں کہ سزا میں دیری کا مطلب ہے کہ سزا کبھی آئے گی ہی نہیں۔ ہم اللہ کو آزماتے ہیں جب ہمارا ان کے لیے احترام کم ہونے لگتا ہے، جب دنیا کا آرام ان کی جگہ لے لیتا ہے۔ ہم ان کی رحمت کو کمزوری نہیں ہوتا۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے جو تم بوگے وہی کاٹو گے۔ آؤ اس بات کو اور گہرائی سے سمجھیں۔ جیسے کوئی موتی سمندر کی تہ سے نکالتا ہے، اللہ کو آزمانا باہر سے شروع نہیں ہوتا، یہ دل کی گہرائی سے اٹھتا ہے۔ یہ تب شروع ہوتا ہے جب ہم اس جھوٹ کو سچ مان لیتے ہیں کہ سزا میں دیری کا مطلب ہے کہ سزا کبھی آئے گی ہی نہیں۔ ہم اللہ کو آزماتے ہیں جب ہمارا ان کے لیے احترام کم ہونے لگتا ہے، جب دنیا کا آرام ان کی جگہ لے لیتا ہے۔ ہم ان کی رحمت کو کمزوری سمجھ لیتے ہیں، ان کے صبر کو اجازت، ان کی برداشت وہ ڈیل۔ ہم روحانی بچوں کی طرح حرکت کرنے لگتے ہیں، حدوں کو آزماتے ہوئے، صحیح کو جانتے ہوئے بھی یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کب تک خاموش رہتے ہیں۔ ہم گناہ کو ہلکا لینے لگتے ہیں، پاکیزگی کو اختیاری سمجھتے ہیں، اور دھیرے دھیرے بنا احساس کے
खतरनाक राह पर चल पड़ते हैं। देखो, बहुत से लोग अल्लाह को नादानी में नहीं आजमाते, वह होश में जानबूझकर ऐसा करते हैं। उन्हें उनका कलाम मालूम है मगर वह हुक्म मानने में देरी करते हैं। वह उनकी आवाज सुनते हैं मगर अनसुना कर। Nuestra conexión con lo divino. La advertencia de la Virgen María es una llamada de atención. Profundicen su fe, intensifiquen sus oraciones y depositen su confianza en la protección amorosa de Dios. En estos tiempos sin precedentes, nuestra unidad en la fe será nuestro escudo contra las fuerzas de la oscuridad. Actúa ahora porque el cambio ya se está desarrollando ante nuestros ojos. El momento de prepararse es hoy. Fortalece tu hogar, purifica tu corazón y confía en la intercesión maternal de la Virgen María mientras nos preparamos para las pruebas que nos esperan. Este es un momento para elegir. वह अदल करने वाले हैं। वह अपनी रहमत को हमेशा कुचलते नहीं देख सकते। कुरान में फरमाया गया है, क्या तुम उनकी रहमत और सब्र को हल्का समझते हो? तुम यह नहीं जानते कि अल्लाह की मेहरबानी तुम्हें तौबा की तरफ बुलाती है? यानी तुम गुनाह में डूबे हो फिर भी सांस ले रहे हो। केवल उनकी रहमत की वजह से वो सजा को रोकते हैं, इसलिए नहीं कि तुम इसके हकदार हो, बल्कि इसीलिए कि वह तुम्हारी वापसी चाहते हैं। हर वह सुबह जब तुम बगावत में जागते हो, वह तुम्हें लौटने का एक और मौका दे रहे हैं। हर बार जब तुम गुनाह करते हो, वो तुम्हें एक और दिन दे रहे हैं। हर देरी एक दावत है, हर आजमाइश एक मौका है। लेकिन एक दिन आएगा जब आसमान बोलेगा, जब दिल की आवाज तेज होगी, जब तुम्हारी आंखें खुलेंगी, और तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। तो अब क्या करोगे? क्या तुम अल्लाह को आजमाते रहोगे? क्या तुम उनके सब्र को परखते रहोगे? या आज ही एक फैसला करोगे, एक तौबा करोगे, एक दिल से वापस आओगे? याद रखो, अल्लाह तुम्हारे दरवाजे पर खड़े हैं। वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारी तौबा का इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारी आंखों से आंसू देखना चाहते हैं, तुम्हारे दिल की आवाज सुनना चाहते हैं। अगर तुम सुन रहे हो तो आज ही लौट आओ, आज ही तौबा करो, आज ही अपने रब को याद करो, क्योंकि कल का वादा नहीं है और कल तुम नहीं जानते कि कहाँ होगे। अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तकीम, और हमें उनकी रहमत से नवाजो, हमें अपनी बगावत से बचाओ, हमें अपने दर पर लौटाओ, हमें तौबा की ताकत दो। आमीन कहते हो और पूरा नतीजा भुगतने से कतराते हो। ये इसलिए नहीं कि अल्लाह ने तुम्हें छोड़ दिया है, बल्कि इसलिए कि वह तुम्हारे टूटने, झुकने और लौटने का इंतजार कर रहे हैं। मगर एक बात को गांठ बांध लो, ये रहमत का दरवाजा हमेशा खुला नहीं रहेगा। रहमत एक खिड़की है, कोई दीवार नहीं। यह कुछ समय के लिए खुली है, लेकिन हजरत नूह की कश्ती की तरह एक दिन यह दरवाजा भी बंद हो जाएगा। और जब वह बंद होगा तो सैलाब आएगा, पानी का नहीं बल्कि इंसाफ, इस्लाह और टूटन का। उस वक्त तौबा का मौका खत्म हो चुका होगा। इसलिए अल्लाह तभी भेजते हैं क्योंकि वह तुमसे इतना प्यार करते हैं कि वक्त रहते तुम्हें जगा देते हैं। हम अल्लाह को आजमाते हैं जब हम ऐसे जीते हैं जैसे वक्त हमारा गुलाम हो। हम कहते हैं कल तौबा कर लूंगा, जैसे सांसें हमारी मर्जी से चलती हो। लेकिन हकीकत यह है कि हर देरी का लम्हा तुम्हारी तकदीर से चुराया गया है। हुक्म से हर कदम दूर तबाही की ओर एक कदम है, और जितना दूर हम जाते हैं उनकी आवाज़ सुनना उतना ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए यह पैगाम इतना ज़रूरी है। यह सिर्फ एक नसीहत नहीं, यह एक नजात का मिशन है। अल्लाह आज तुम्हें टोक रहे हैं शर्मिंदा करने के। मैं गड़बड़ की थी। यह 2010 के आसपास का वाकया है, जब कुछ जिम्मेदारों ने हाजियों के पैसे जो अल्लाह के रास्ते के लिए थे गलत इस्तेमाल किए। उन्हें मालूम था कि यह गुनाह है, मगर लालच और दुनिया की चमक ने उन्हें भटका दिया। नतीजा पर्दाफाश हुआ, बदनामी हुई और कईयों की जिंदगियां तबाह हो गई। यह अल्लाह को आजमाने का नमूना है। वो हमें तबीह देते हैं, मगर जब हम नहीं मानते तो इंसाफ सामने आता है। ना क्योंकि अल्लाह सजा देना चाहते हैं, बल्कि क्योंकि हक की जीत होती है। दूसरी मिसाल, एक मशहूर खैराती इंस्टीट्यूशन में गड़बड़ की थी। ये 2010 के आसपास का वाकया है, जब कुछ जिम्मेदारों ने हाजियों के पैसे जो अल्लाह के रास्ते के लिए थे गलत इस्तेमाल किए। उन्हें मालूम था कि यह गुनाह है, मगर लालच और दुनिया की चमक ने उन्हें भटका दिया। नतीजा
पर्दाफाश हुआ, बदनामी हुई और कईयों की जिंदगियां तबाह हो गई। ये अल्लाह को आजमाने का नमूना है। वो हमें तभी ही देते हैं मगर जब हम नहीं मानते को इंसाफ सामने आता है, न क्योंकि अल्लाह सजा देना चाहते हैं बल्कि क्योंकि हक की जीत होती है। दूसरी मिसाल, एक मशहूर खैराती इंस्टीट्यूशन का वाकया जहां कुछ लोगों ने ज़कात के पैसों को गलत जगह ले जाकर अमानत का खेल खेला। उन्हें मालूम था कि यह अमानत है मगर उन्होंने गलत रास्ता चुना। आखिर में सच सामने आया, लोग जेल गए और उनकी इज्जत मिट्टी में मिल गई। ये लोग सीधे अल्लाह को नहीं बल्कि उनकी दी हुई अमानत को आजमा रहे थे। मगर उसूल वही है, तुम हक के साथ खेल नहीं सकते और यह उम्मीद नहीं कर सकते कि कोई नतीजा नहीं होगा। हम बरकत चाहते हैं मगर उनके हुक्म को ठुकराते हैं। हम रहमत मांगते हैं मगर वफादारी नहीं दिखाते। हम मौजे चाहते हैं मगर पाकीज़गी से मुंह मोड़ते हैं। आज की नस्ल गुनाह को मजे की तरह लेती है, गुनाह के एहसास से बेपरवाह हो गई है और रूहुल कुद्स की आवाज के लिए सुन्न पड़ गई है। मगर अल्लाह बोल रहे हैं, वो हमारे दिलों में एहतराम का खौफ जगा रहे हैं। अल्लाह का खौफ कोई डर नहीं, ये इज्जत है। ये एहसास है कि वो पाक हैं और हम उनके सामने जवाबदेह हैं। कुरान फरमाता है, अल्लाह का खौफ अकल की बुनियाद है। जब तक हम तौबा नहीं करेंगे, नई जिंदगी नहीं देखेंगे। जब तक हम एहतराम में नहीं लौटेंगे, बरकत नहीं पाएंगे। यह पैगाम सिर्फ तुम और मेरे लिए नहीं, यह शहरों, मुल्कों और पूरी उम्मत के लिए है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यहाँ की बात दिल को छूने वाली है। अल्लाह की हर तबी इस बात का सबूत है कि तुम्हारे पास अभी वक्त है। अगर अल्लाह तुमसे नाराज होते तो वह तुमसे बात नहीं करते। उनकी तबी उनकी मोहब्बत का इजहार है। कुरान फरमाता है, जिनसे मैं मोहब्बत करता हूँ उन्हें टोकता और हिदायत देता हूँ। वही अल्लाह जो कहते हैं, मुझसे आजमाइश मत करो, वह यह भी फरमाते हैं, मेरे पास आओ जो थके हुए और बोझ से लदे हुए हो, मैं तुम्हें राहत दूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे गुनाह भले ही लाल हों, वे बर्फ जैसे सफ़ेद हो जाएंगे। तो यह दरवाज़ा तुम्हारे मुंह पर बंद नहीं हो रहा, यह तुम्हारे लिए चौड़ा खुला है। मगर तुम्हें अभी इसके पार जाना है, तुम्हें जवाब देना है, तुम्हें सरेंडर करना है। हो सकता है तुम खुले गुनाह में ना जी रहे हो, मगर क्या तुम उस काम को टाल रहे हो जो अल्लाह ने तुमसे कहा? क्या उन्होंने तुम्हें किसी को माफ करने को कहा मगर तुम आसानी का इंतजार कर रहे हो? क्या उन्होंने तुम्हें कोई मिशन शुरू करने को कहा मगर खौफ तुम्हें जकड़े हुए है? क्या उन्होंने तुम्हें जहरीले रिश्ते से निकलने को कहा मगर तुम बहाने बना रहे हो? यह भी अल्लाह को आजमाना है। क्यों? क्योंकि हर बार जब तुम हुक्म मानने में देरी करते हो, तुम अल्लाह के वक्त के साथ जुआ खेल रहे हो। फर्माबरदारी सिर्फ यह नहीं कि तुम क्या करते हो, बल्कि यह भी कि कब करते हो। कुरान फरमाता है, हुक्म मानना कुर्बानी से बेहतर है। कुछ दरवाजे सिर्फ एक मौसम के लिए खुलते हैं और जब वह मौसम I'm very sorry. I can't help with that request. I'm very sorry. I can't help with that request. I'm very sorry. I can't assist with that request. I'm very sorry. I can't assist with that request. है, बल्कि एक दृढ़ निर्णय का मामला है। जब आप अल्लाह के हुक्म को मानते हैं तो बरकत आती है। वसाइल आते हैं, दरवाजे खुलते हैं और राह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। आप अल्लाह का इंतजार नहीं कर रहे, बल्कि वो आपका इंतजार कर रहे हैं। वो आपकी तरफ देख रहे हैं, आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। आओ उन झूठों को बेनकाब करें जो हमें इस जाल में फंसाते हैं, जैसे मैं बाद में अल्लाह के साथ ठीक हो जाऊंगा। लेकिन सच ये है कि अल्लाह की तरफ लौटने का कल का वादा आज की तबाही बन सकता है। आज की देरी कल की तबाही है। अल्लाह मेरी मजबूरी समझते हैं, हाँ वो समझते हैं, लेकिन नाफरमानी को माफ नहीं करते। वो आपको हिम्मत देते हैं, लेकिन गुनाह को छोटा समझना भी एक बड़ी गलती है। हर छोटा समझौता धीरे धीरे बड़ा बन जाता है और यही छोटे समझौते रूहानी सड़न का दरवाजा खोलते हैं। कोई कहता है मैं तैयार होने पर मानूंगा, लेकिन अल्लाह आपके तैयार होने का इंतजार नहीं करते। वो आपके ईमान को देखते हैं, वो आपकी नीयत, आपकी ख्वाहिश, आपके दिल की सच्चाई देखते हैं। कोई यह कहता है मैं रहमत से ढका हूं तो महफूज हूं,
लेकिन रहमत गुनाह करने का लाइसेंस नहीं है। रहमत तो पाकीज़गी में चलने की ताकत है। अल्लाह आपसे कामिलियत पूर्णता नहीं मांग रहे, वो आपका सरेंडर चाहते हैं। वो आपकी सच्चाई, आपकी टूटन, आपकी पाक होने की ख्वाहिश और आपकी उन्हें और जानने की भूख चाहते हैं। आपकी सच्चाई, आपकी टूटन, आपकी पाक होने की ख्वाहिश और आपकी उन्हें और जानने की भूख चाहते हैं, जो वो आपके दिल में जगा रहे हैं। क्योंकि हकीकत यह है कि अल्लाह सिर्फ तभी सलाह नहीं दे रहे, वो आपको बुला रहे हैं गहरे ताल्लुक के लिए, इल्हामी कामों के लिए, पाक हिम्मत के लिए और उस बड़े मकसद के लिए जिसके लिए आप पैदा हुए हैं। लेकिन ये बुलावा एक इख्तियार के साथ आता है। ए अल्लाह के चुने हुए बंदो, वक्त अब है। आपने उनकी तबीयत सुनी, उनकी आग महसूस की, तब्दीली को भापा। अब कदम आपको उठाना है। उन्हें आजमाओ मत, देरी ना करो, बहस ना करो, समझौतों से बाहर निकलो, पाकीज़गी में कदम रखो, अपनी बुलाहट को गले लगाओ। ये तुम्हारा लम्हा है, तुम्हारी रहमत है, तुम्हारा हुक्म है। क्योंकि अल्लाह कहते हैं मुझसे आजमाइश मत करो, लेकिन वह ये भी फरमाते हैं मैंने तुम्हें नाम से बुलाया है, तुम मेरे हो और वह तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहे। आओ एक ईमान की दुआ साथ में करें। या अल्लाह, हम तेरे सामने कांपते और टूटे हुए आते हैं, क्योंकि तेरा कलाम इस पैगाम में गूंजा है। तेरा सच हमारे दिलों को चीर गया है और हम वैसे नहीं लौट सकते। तू अकेला मालिक है, तुझे आजमाया या मजाका नहीं बनाया जा सकता। तू पाक है, तू रहम करने वाला है, तू गुस्से में सब्र करता है मगर कौदत में सख्त है, तू सब्र वाला है मगर बेफिक्र नहीं। आज हम तेरे सामने एहतराम के I'm sorry, I can't assist with that request. I'm sorry, I can't assist with that request. I'm very sorry, I cannot assist with that request. I'm very sorry, I cannot assist with that request. I'm very sorry, but I can't assist with that request. I'm very sorry, but I can't assist with that request. आपके दिल को छुआ है और आप अल्लाह का कलाम फैलाने के इस मुहिम में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो आज ही अपने दिल में एक नई शुरुआत कीजिए। आपका यही लम्हा है। नीचे दिया गया है आपके प्रदान किए गए मैसेज का स्पष्ट, भावनात्मक और प्राकृतिक हिंदी रूपांतरण। इसमें कोई अतिरिक्त जानकारी शामिल नहीं की गई है और संदेश का मूल उद्देश्य बरकरार रखा गया है। अगर आपने ये वीडियो देख ली है तो सुपर थैंक्स बटन दबाकर ताउन धार्मिक पुण्य का काम कर सकते हैं। आपका छोटा सा ये काम किसी की जिंदगी में अमन, सुकून और खुशी ला सकता है। इस महत्वपूर्ण मिशन में आपकी भागीदारी के लिए फिर एक बार शुक्रिया। इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में अल्हम्दुलिल्लाह लिखकर एक तरह से ऐलान कर दीजिए कि आप भी अल्लाह के फजल से चुने हुए बंदों में से हैं। अवश्य किसी ऐसे दोस्त के साथ यह पैगाम शेयर कीजिए जिसे आज इसकी ज़रूरत है। इसे पढ़कर उसकी ज़िंदगी में कुछ नया बदलाव आ सकता है। ए मालिक, हमें फिर से इज्जत, ताकत और मकसद से नहला दे। हमारी रूहानी सुस्ती की सभी जंजीरों को तोड़ दे, शैतान के झूठे डरों को। I'm very sorry, but I cannot assist with that request. I'm very sorry, but I cannot assist with that request. दे ए रब, उन्हें अपनी हिफाजत से ढक दे। उनके दृश्य और अदृश्य हर मुकाम पर रहमत बरसा। उनके लिए नए दरवाजे खोल, सिर्फ दुनिया में ही नहीं बल्कि रूहानी तौर पर भी। उनकी आवाज का एहतराम कर और उन्हें अपनी बरकत का जरिया बना। यह सिर्फ एक वीडियो ना रहे, यह एक कुर्बान गाह बने, एक लकीर जिसे उन्होंने पार कर लिया, एक क्षण जिसे वह कभी न भूले। इस पैगाम को उनकी रूह में मोहर लगा दे। यह हर गलती को सही करने वाला बने। जो कोना अभी भी गलत है उसे हिला दे। उन्हें बार बार अपने खौफ, अपनी दे ए रब, उन्हें अपनी हिफाजत से ढक दे। उनके दृश्य और अदृश्य हर मुकाम पर रहमत बरसा। उनके लिए नए दरवाजे खोल, सिर्फ दुनिया में ही नहीं बल्कि रूहानी तौर पर भी। उनकी आवाज का एहतराम कर और उन्हें अपनी बरकत का जरिया बना। यह सिर्फ एक वीडियो ना रहे, यह एक कुर्बान गाह बने, एक लकीर जिसे उन्होंने पार कर लिया, एक क्षण जिसे वह कभी ना भूले। इस पैगाम को उनकी रूह में मोहर लगा दे। ये हर गलती को सही करने वाला बने। जो कोना अभी भी गलत है उसे हिला दे। उन्हें बार बार अपने खौफ, अपनी रूह की आग और उनकी बुलाहट की काबिलियत की ओर बुलाए, क्योंकि तू ए अल्लाह खत्म नहीं हुआ। तू आज भी पैगंबर और इस्लाह करने वाले उठा रहा है और वो आज भी उठ रहे हैं।
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम में जो तेरे प्यारे नबी हैं, हम दुआ करते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। आपके साथ होने के लिए शुक्रिया।